लगता है कि भारत सरकार का कुशल भारत कौशल भारत जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें क्रिकेट कोचिंग को भी शामिल करना चाहिए जिस तरह क्रिकेट होती आ रही है। मैच शुरू होने जा रहा है, गोवा से उम्मीदें ज़्यादा है। हरीश आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे गोवा के क्रिकेट का सूरत हाल म्यूनसिपैलिटी लेवल पे, तहसील पे और डिस्ट्रिक्ट पे किस तरह क्रिकेट चलता है, और कोई ऐसा खिलाड़ी जिससे आपको ज़्यादा उम्मीद है जो गोवा के झंडे को ऊंचा रखेगा ये मुकाबले में। I think the one you can see on the screens, Gaurish Nagvekar. Well, not only in Goa, he is one of the most feared among, you can talk about Maharashtra, he goes in the Sindhudurga Taluka, he goes in Mumbai, and he has been invited by many of the top teams to play because he's got some different skills. High pace, got wonderful variations, and he has shown in the past that he can be the big name from Goa that can do wonders. So he's one name I was talking about, and there are a lot of young talent. You can see Sai Zore also showing his skills with the bat, although he went out. But a lot of young boys are really performing well, and if stage is given, they can certainly pounce on that opportunity. Here comes the beginning of the innings. Gaurish Nagvekar once again with the new ball, and not easy to bowl in the power play overs and to be quite economical. And this boy has got that skills. Once captains wins the toss, opting to bowl first, the first thing that he thinks about who is going to bowl in the power plays. And as far as Apali Kalangutkar is concerned, he don't have to think again twice. He just comes, gives the ball to Gaurish Nagvekar, and there he's ready to bowl again. What a talent to have in your armor. एक और चीज़ जो उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया वो ये है कि लाइट से हम जल्दी एडजस्ट हो जाएं बॉलिंग करते समय। Yes, that might be one scenario there where lights are coming into effect. This is the time we are almost at 6 o'clock. So by the time this innings conclude, we might just go around 7. So lights will be into full effect. The sunlight, whatever twilight is there on this field, on this ground, will definitely go down, and it will definitely be much better for the Goan team to bat in the second innings, and that is what prompted the captain Apali Kalangutkar. It was an immediate decision of bowling first. The lights have been into full effect now, but this is a tricky time. This is the twilight where sun goes down. Slight bit of sunlight also is going to play its role. Well bowled, exceptional bowling, just cuts down. Beautiful late cut there, and it runs down for 4 runs using the pace of the bowler. I think the bowler has done good job in bowling a fast off cutter. He surprised the batter. He still opens the face, and a late cut, nudging it down for a boundary. The first boundary for Supreme Super Kings. Well adjusted there. He was definitely beaten by the pace and also by that cutter by Gaurish, but he still opens the face using the pace. There was a little bit of miscommunication between the short fine and the short third man region of Royal Challengers Goa. Play across. There is the man in the deep, Rajat Kudarkar, fielding in the cow corner region. Concedes a single. Vijay Pratap and Venkateshan. Well, earlier in the previous game, they lost a wicket of the very, very first ball. But having seen and talking about the current situation, they are on 6 without loss. Vijay Pratap and Venkateshan both have got themselves off the mark. Gaurish Nagvekar will be looking to strike off the new ball. Once again, played across the line. Sai Zore fielding. A decent first over. Just the boundary, and that boundary has not come off very bad bowling. It is a good shot, and he adapted really well over there, the batter. But Gaurish once again showing his class with the new ball. बिल्कुल लिमिटेड ओवर के मैच में इस तरह के स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं, और जब बल्लेबाज विजय प्रताप जैसा बल्लेबाज हो, बाएं हाथ के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार होते हुए गौरेश नागवेकर की गेंद, और इस बार बिल्कुल बॉलर बैक ड्राइव जिसे कहते हैं, लॉफ्टेड थोड़ा हवा में, लेकिन दन दनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकली 4 रनों के लिए। तो 4 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पे पहुंचा है एसएसके का। Straight back past the bowler. This time tried to bowl a fuller length there. Gaurish and paying the prize. Batter did good in day number 3 and match number 4. बिल्कुल बहुत ही
कन्वीनियंट जगह पे बनाया गया ये दादोजी कोंडदेव स्टेडियम, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये बहुत ही विकेट्स पिचेस यहाँ पर है बल्लेबाजी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। और इस बार गेंद को उठाकर लॉफ्ट ड्राइव किया बॉलर बैक, काफ़ी तेज़ी के साथ गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर निकली। काफ़ी आक्रामक स्ट्रोक्स ले रहे हैं वेंकटेशन और 3 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। 17 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के, 14.57 का एवरेज। अभी तो मैच की शुरुआत ही हुई है, अभी एवरेज इतना मायने नहीं रखता, लेकिन अच्छी करारी और मजबूत पारी की यहाँ पर शुरुआत करते हुए वेंकटेशन। Yes, and rightly so. They have not lost a wicket. This is the power play overs in progress, and you have to take the advantage of the fielding restrictions. That is what most of the openers would like to do. And so far, that previous delivery was bowled slightly wide, an ample of opportunity for the batter to go downtown. This time, much better here. Harshad Matonkar. So change in ploy. It was Rohan Salgaonkar who was given the new ball to give company to Gaurish Nagvekar. In the second game, they realized maybe Harshad Matonkar had an exceptional spell, picked up 3 wickets in the previous game, and they have given in the ball with the new ball to give company. Well bowled. Saw the batter. That could have been taken. Difficult chance. Mohit Gaonkar there, running back behind. Almost could have pulled up a stunner. But this is really skillful bowling from Harshad Matonkar. He tracked the batter, his movement, going for the switch hit and fire down the leg side. प्रेसिडेंट कप 2026 के मुकाबले जो खेले जा रहे हैं दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में, और निश्चित रूप से ये मुकाबले यहाँ पर बहुत ही संघर्षपूर्ण तरीके से खेले जा रहे हैं। जीतने वाली टीम के लिए, जैसे पहले हमने कहा, 1 करोड़ रुपए का इनाम यहाँ पर रखा गया है और उपविजेता टीम को 50 लाख रुपए का इनाम यहाँ पर मिलेगा। जबकि दूसरी ओवर डाली जा रही है पावर प्ले की और 18 रन बने हैं। विजय प्रताप खेल रहे हैं 9 रनों पर, वेंकटेशन खेल रहे हैं 9 रनों पर। दोनों ही खिलाड़ी 9 रनों पर खेल रहे हैं और टीम का स्कोर 18 रन है। कोई भी अतिरिक्त रन नहीं बने। गौरेश ने जो पहली ओवर डाली थी उसमें 11 रन उन्होंने खर्च किए थे, जबकि हर्षद ने अभी तक 3 गेंदों में अपने तरफ से 7 रन खर्च कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर एक पार्टनरशिप 18 रन के 9 गेंदों में बन चुकी है। विहंगम दृश्य दादोजी कोंडदेव स्टेडियम का, जो कि बहुत ही उपयुक्त इस तरह का स्टेडियम। और बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं ये उप ठाणे की उभरती हुई इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें, और उसके इर्द गिर्द बना हुआ ये स्टेडियम जो मुख्य रूप से बनाया गया था क्रिकेट के लिए, और आज उसका निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। और तिरछे बल उल्टे बल्ले से खेलते, मैं समझता हूँ कि रिवर्स स्वीप जिसे कहते हैं, उस अंदाज में खेला। हवा में गेंद लहराती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर निकली 6 रनों के लिए। I think they are getting predictable over there. They realize that Harshad Matonkar is someone who doesn't have that much of pace. The batter going for the switch hit. Power play going on at the moment, and there is no player in the deep. So it's a safe shot. And that's what they are trying to do here. They are trying to give a strong start to Supreme Super Kings of Tamil Nadu. Well, in tennis ball cricket, it's the 8-over game. You realize that you might get 6 balls or 12 balls. You got to be really smart and cunning. You got to track the batter's movement, and you got to be slightly aware of the situation. This is much better. Closer appeal there from Harshad Matonkar. Cannot provide too much of width almost every time and then, and can't be predictable. Unpredictability sometimes can do wonders. And that is what Purvanchal Panthers have showcased with that left arm medium pacers. Both are quite skillful, bowled with depth and the width of the crease. They must take a leaf out of the book from those players. Swatted away and swatted away for 6 runs. लगातार अपने आक्रामक रवैया का यहाँ पर रुख अख्तियार किया है बल्लेबाज ने, और लगातार कंधों को खोलते हुए, अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज रहे हैं। और निश्चित रूप से 2 ओवर का खेल जो पूरा हुआ 30 रन बने हैं, तो ये रन औसत जो 15 रन का, ये दिखा रहा है कि एक मजबूत इरादे के साथ यहाँ पर सुप्रीम सुपर किंग की टीम बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है। और निश्चित रूप से 8 ओवर में कितना बड़ा लक्ष्य वो अर्जित करना चाहेंगे हरेश। मैं समझता हूँ कि 90 के ऊपर ही निश्चित रूप से वो अंक अर्जित करना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोई भी टीम जो 90 के नीचे बनाती है शायद वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। Although Purvanchal Panthers have defended 85, but it cannot happen every time. The idea is that these wickets are getting better and better. You can see Tar Rocks there. The exceptional player who is going to perform out of the skins, who is going to be outstanding, is going to get that Tar Rocks. Wonderful graphics there.
Thar Rocks, what a premium quality car this one. Whoever wins it will be quite lucky, but I think the hard work will also be there behind winning that one. Some players have really started well, and they got started with some good runs, and they'll be there somewhere around about that most valuable player, but a long way to go to clinch that Thar Rocks. बिल्कुल थार रॉक्स को कलेक्ट करने के लिए जो प्रयत्न है, कोशिश है अभी काफ़ी खिलाड़ियों की, इस बार काफ़ी बाहर और स्वे तिरछे बल्ले से स्टीयर कर दिया स्क्वायर इस थर्ड मैन की तरफ, जब तक कि डीप कवर पॉइंट से फील्डर आके गेंद को उठाते बल्लेबाजों ने रन पूरा किया। 1 रन से स्कोर आगे बढ़कर 31 पे पहुंचा है। तो थार की जो बात आप कर रहे थे हरीश, मैं समझता हूं कि अभी काफ़ी खिलाड़ी प्रतिद्वंदी हैं इस मैन ऑफ द सीरीज़ के, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो होगा देखना होगा ये कि वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो इस चमचमाती हुई कार को अपने साथ ले जाना चाहेगा। विजय प्रताप जो 7 रन पर 21 रन बनाकर खेल रहे हैं 300 के औसत से, देखना है कि क्या इस साझेदारी को और कितना आगे बढ़ा पाते हैं ये दो बल्लेबाज एसएसके के सुप्रीम सुपर किंग, जो कि टॉस हारने के बाद यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए। गेंदबाज अमीर, That's much better. Changing his line a bit, ball much fuller, and you can see it rolled his fingers over the ball. The left arm medium pacer, and disguised the batter entirely. And this is what you got to do. You just cannot come and bowl flat medium pacers. These bowlers don't have that much of pace, so you got to be relying on your variations here. Another one. Nothing wrong for the batter there. He went across for the switch hit, understanding Amir might be bowling that back off length delivery. So this is where Amir Gadekar needs to just capitalize. Couple of dot balls, just a single run taken. This is where the batter is going to go for a big one here. And this is going to be the opportunity for the bowling side as well to pick up a wicket. बिल्कुल नियंत्रित कर लिया था अपनी गेंदबाजी को, देख लिया था पहले से कमिट हो रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर, और इस बार फिर उसी तरह से ड्राइव करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद कहीं बल्ला कहीं, लेकिन फिर भी रन उतने ही जितने मिलने चाहिए थे इस बिना टाइमिंग के स्ट्रोक पर। 1 रन से इजाफा हुआ स्कोर में, 32 पे पहुंचा स्कोर। एक एक करके रन बन रहे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा जिस तरह से अमीर गड़ेकर यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं पूरी तरह से उन्होंने बल्लेबाजों को अचंभित किया है। कभी धीमी रफ्तार की गेंद, कभी तेज रफ्तार की गेंद, और दिशा बदलती हुई गेंद उन्होंने डाली है। And Apali Kalangudkar as the skipper, if he wants to reap the reward, then he needs to juggle the bowlers very nicely, and that is what he will be looking after. Amir Gadekar as a left armers have got speciality, especially against the right-handers. They can bowl from over the wicket as well as around the wicket, depending upon the situation, depending upon the opponent. And someone like Amir Gadekar doesn't come with a lot of pace, but he can cut the ball sharply. He's got beautiful yorker as well, the slower one. So he got to use all his bowling prowess here for this game. This is a must-win situation for Royal Challengers Goa. और बिल्कुल सबसे बड़ी खासियत ये है अमेरिका की, उन्होंने बल्लेबाज की योग्यता का मूल्यमापन किया है कि बल्लेबाजों को देख रहे हैं कि कहाँ कमिट हो रहा है, किस तरह से उसका फुटवर्क काम कर रहा है। अगर ज़्यादा कमिट हो रहा है तो गेंद की रफ्तार शॉर्ट और थोड़ा सा बाहर रख रहे हैं ऑफ स्टंप के, जिससे बल्लेबाजों को उतनी आज़ादी नहीं मिल पा रही। यही वजह है कि अपने गेंदबाजी को नियंत्रित करते हुए केवल उन्होंने 3 रन खर्च किए, 33 रन 3 विकेट के समाप्ति के बाद। A beautiful scenes here covered. Can see a boat ride as well. So just next to the iconic Dadoji Kondev Stadium here. So it's not only cricket, people are enjoying themselves with some boat ride. Might be watching this entire game on their mobiles. ये तलाव पारी का क्षेत्र है जहाँ पर शाम के वक्त आप कई वहाँ पर जो घूमने फिरने आते हैं लोग, उनको आप देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वारूढ़ पुतला भी वहाँ पर है, और पीछे इसमें देख रहे हैं आप गडकरी रंगायतन, और उसके बाद मारोतराव तरन तालाब, और ये सारी सुविधाएं ठाणे जैसे शहर में मौजूद हैं। और ये सारी सुविधाएं अच्छी सुख सुविधा के साथ में ठाणेकर की सेवा में यहाँ के सारे, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियन लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पर मुहैया कराई है। और ये झटका लगता हुआ यहाँ पर हवा में लॉफ्ट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, निकालना चाह रहे थे लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से, लेकिन पहुँच नहीं पाए। गेंद हवा में लहराई थी, काफ़ी ऊपर की तरफ गई और अपना विकेट खोया वहाँ पर वेंकटेश ने 7 गेंदों में 11 रन बनाकर वापस लौट रहे हैं। और 33 रन पर यह पहला आघात, पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर एसएसके की टीम को।
I think it's smart bowling from Apali Kalangudkar. Skipper realized that earlier one that over went in favor of them. Just 3 runs from Amir Gadekar, and the batter had to go after the bowling. So he bowled a wide-ish yorker. He kept a man in the deep covers and asked the batter to go in the covers and the long on region. And he gets the leading edge. Smart captaincy, smart bowling from Apali Kalangudkar. Gets the first wicket, 33 for 1. Supreme Super Kings, Tamil Nadu. Well, good to see that Royal Challengers Goa didn't bog down under pressure. They were scored 30 runs in the first 2 overs, where both the openers went hard after them, got a lot of runs. But previous over, they realized that we have to slow the things down, bowl the slower balls. Amir Gadekar bowls a good over, then Apali brings himself on, gets the wicket. Fantastic. इस गेंद को बिल्कुल हाफ वाली पे लेकर उठा दिया है, वहाँ पर कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकली, हवा में तैरता हुआ हाथ आसमान की तरफ, उंगलियाँ इशारा करती हुई कि गेंद भाई पूरे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर निकली है और 6 रनों से इजाफा होता हुआ स्कोर में 39 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। और निश्चित रूप से जिस तरह से कंधे खोले हैं वहाँ पर प्रदीप ने, जिस तरह से उन्होंने ये आक्रामक स्ट्रोक लिया है पहली गेंद पर, वो दिखा रहा है कि वो चुप बैठने वाले नहीं हैं और आक्रामक बल्लेबाज भी हैं, काफ़ी दमखम रखते हैं, काफ़ी शक्तिशाली स्ट्रोक्स उनके बल्ले से देखने को मिले हैं टूर्नामेंट में। क्या आज फिर वही करामत यहाँ पर कर पाएंगे? This is gone high. This might go the distance. This might be another 6. No, it's taken in the deep. And that's the reason why Apali Kalangudkar saying, take it, catch. And it is Sahil Waingankar, who is a petrol himself at the long on region, trying to go for one more. Pradeep, this time not middling the ball. Apali Kalangudkar, the skipper of Royal Challengers Goa, striking 2 in his first over. It's 39 for 2. We are in over number 4. बहुत ही बेहतरीन वहाँ पर कैच लिया था, काफ़ी दूर ऊंची आसमान की तरफ से गेंद हाथ में आ रही थी और कई बार ये आसान लगती हुई कैच कई बार छूट जाती है क्योंकि दर्शकों की दीर्घा से, उसके बाद आसमान की ऊंचाइयों से नीचे जब उतरती है तो कई बार खिलाड़ी अपने आप को असंतुलित कर पाते हैं, उनकी नज़रें हट जाती है और जब आपकी नज़रें हटती है तो गेंद या कैच आपसे छूट जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने स्थिति को बरकरार रखा साहिल ने और बहुत ही अच्छी तरह से जज करते हुए ये आसमानी टोला जो उन्होंने लगाया था उसे कैच किया, नियंत्रित रखा, शरीर को बिल्कुल स्थिर रखा और अपने आँखों को और कंधों को बिल्कुल गेंद की लाइन में रखा और यही खासियत होती है किसी भी कैच को करने में। Goan team has also made a change. They are getting Sahil Waingankar in. He's a good fielder. He can bowl well. He's a good all-rounder. That was not an easy catch, and rightly so. Sometimes in the stadium, at the background, you can see a little bit of movement. Maybe the color might be flashing in your eyes. You got to judge it nicely. Get yourself into position. Also see where is the back line. The skirtings there on the line there. And you should be making sure that you don't touch that. Everything done perfectly right by Sahil Waingankar in taking that catch. And Royal Challengers Goa have to go after the wickets because these Supreme Super Kings we have seen in the previous game they have got 5-6 good bowlers. Another one pull shot. Will it be a chance? No, slightly away from reach of Apali Kalangudkar. Pretty good length, hard length, trying to go for the pull shot. Just climbed on top of the batter. Apali has been bowling really smart here. बिल्कुल, पहली गेंद वाइड डाली, उसके बाद सिक्सर लगा उनको, फिर दूसरी गेंद वाइड और उसके बाद विकेट ली और उसके बाद में फिर एक विकेट और उसके बाद 1 रन खर्च किए तो नियंत्रित किया है। भले ही एक सिक्सर उन्हें लगा लेकिन गेंदबाजी बहुत नियंत्रित कर रहे हैं अपाली कलंगुटकर, इसमें कोई दो राय नहीं। 10.91 का औसत चल रहा है, चौथी ओवर डाली जा रही है, 40 रन बने हैं, 2 विकेट गिर चुकी हैं। Yes, and they realized here that slower balls or a pace off on the delivery, maybe the slower off cutter or the leg cutter is going to be much better on a situation. All the batters here of Tamil Nadu Supreme Super Kings, they are trying to go hard. They've got strong bottom hand and that is where the slower balls will come handy. Wonderful over to back up the over of Amir Gadekar, who just conceded 3 runs. Apali picks up 2 crucial ones, 41 for 2. Game hung in well balanced there. Another slow one. This time he picks the spot and goes long, dispatched over the cow corner boundary. The shot of high magnitude, 47 for 2 in 4 overs.
बहुत ही आक्रामक रुख अख्तियार करके बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर विजय प्रताप। 12 गेंदों में 23 रन बना चुके हैं और बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक और सही टाइमिंग के साथ सही बल्ले का इस्तेमाल करते हुए फील्डर सर पे हाथ लगाकर देख रहे थे कि गेंद तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर किस तरह से जा रही है। तो ये दिखा रहा है कि कितना आक्रामक स्ट्रोक वहाँ पर लिया था विजय प्रताप ने, और यही होना चाहिए जब आप किसी भी स्ट्रोक को लेते हैं तो कम से कम उसे बहुत तेज़ी के साथ लें, जिससे कि अगर कट भी लगे, क्रिकेट में कहा जाता है कि कट भी लगे तो वो दंदनाती हुई निकलना चाहिए बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन यहाँ तो छक्के के रूप में निकाले हैं। और जिस तरह से ये मैच चल रही है, इस अगर इसी औसत से खेलते रहे तो 94 रन बनेंगे और 14 रन प्रति ओवर और बनाती है टीम तो 103 रन बनेंगे। तो ये सब औसत ही दिखा रहा है। लेकिन कई बार हरीश ऐसा होता है कि आप एक अच्छी स्टार्ट ले लेते हैं, 4 ओवर में 47 रन बना लेते हैं, फिर बाद में 1-2 ओवर में अगर 2-4 विकेट आपके गिर जाते हैं तो फिर आपके जो हौसले हैं या जो रन बनाने की जो ख्वाहिश है वो काफ़ी हद तक घट जाती है और आप कई बार 85 से 90-95 तक सीमित हो जाते हैं। And I think Goan team, also the think tank, must have seen that here are the official scoring partners. Crick Pro, beverage partners, Cloud9, your beverage partner here since 2008. Energy drink partner, Cloud9. Get yourself energized here at the President Cup. Man of the match sponsors, Ground Volley, AA Sports Kudus, SO18, 6-8. Ayush Rockers and TennisCricket.in, YouTube live broadcasting on both these channels. Event managed by Ultimate Event Makers, LLP. We create, you celebrate. Here is the President Cup. Beautiful. It's not only about the aura here, powered by Runal Creativity. And that is the instant energy. I think Royal Challengers go on instant energy here because Tamil Nadu Supreme Super Kings, in spite of losing a couple of wickets, they are going hard and they are blazing away here. और अभी भी जलपान का वक्त हुआ है, थोड़ा सा इंटरवल का जो वक्त हुआ, 4 ओवर में शायद यही एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल किया गया होगा वहाँ पर एनर्जी बरकरार रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के खिलाड़ियों को उनके और इरादे बुलंद करने के लिए। जबकि 2 विकेट गिर चुके हैं, 47 रन बने हैं। नई ओवर देखना कि किसे देते हैं। अब तक जो 4 गेंदबाज इस्तेमाल हुए हैं, गौरेश ने 11 रन खर्च किए, हर्षद ने 19, अमीर ने 3 और अपाली ने 2 विकेट लिए थे 14 रन देकर। जबकि नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर अमीर गड़ेकर जिन्होंने कि इस बार पुल कर दिया। That's not best of the bowling. Short ball to a left-hander. Well, this ball could have been much better to the right-hander. He was waiting onto the back foot, Vijay Pratap, and just smashes it over the long leg region. Not the best of the length. Easy pickings here for Vijay Pratap. Amir Badekar has been asked to bowl the second over. Just that he has bowled exceptionally good over. Just conceded 3 runs. And now in the second over, he bowled a short ball where the batter was ready. जरूरी नहीं कि जिस तरह से आपने पहली ओवर डाली दूसरे ओवर में भी उसी तरह से आपका स्वागत हो। यहाँ पर छक्के से उनके गेंदबाजी का स्वागत किया है बल्लेबाज यहाँ पर विजय प्रताप ने। दूसरी गेंद इस पर काफ़ी बाहर भटकती हुई गेंद, लहराती हुई, और अंपायर का इशारा जमीन से समानांतर यानी वाइड बॉल के तौर पे गेंद निकली है। स्कोर पहुंचा है 54 रनों पर। Amir Gadekar must understand you are successful because you bowl those slower off cutters, and for the left-hander you can bowl it from slightly wideish line where it can finish inside that guideline. Anything closer to the body, these batters are very, very strong. That's much better. That's exactly the line I was talking about. And you can see the batter is just swatting across and looking to swipe over that leg side. And this line and length going to be much better. और टेनिस क्रिकेट में ज़्यादातर आपने देखा होगा या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी आजकल ये देखने को मिलता है कि कई बल्लेबाज ऑफ स्टंप्स छोड़कर बाहर की तरफ निकलते हैं और गेंदबाज ने भी अपना जो पैतरा है वो चेंज करना शुरू कर दिया, काफ़ी बाहर डालते हैं ऑफ स्टंप के, जिससे कि बल्लेबाज वो स्ट्रोक्स नहीं ले पाए और कई बार इसी तरह से आतताई स्ट्रोक खेलने के लिए मजबूर करते हैं, विवश करते हैं और वहीं पर गलतियाँ हो जाती है। This is exactly the line, this is exactly the pace that he was successful in the previous over. And that's why I said poor bowling when he bowled that short ball because it's easy pickings. It doesn't have that much of pace to trouble the batters of Supreme Super Kings. Now he has realized I made a mistake there and now once again going to the basics. Oh, there's a blip in the field. Big blemish here. There was a man placed in the deep covers position. Should have been taken. A perfect setup here by Amir Gadekar. And lost a golden opportunity. I think it's Rajat Kudalkar fielding in the deep covers. This was a wicket here. It was a simple take. He dropped it and adding insult to injury for the bowler.
concedes a boundary. बिल्कुल इस तरह के कैचेस ले लिए जाने चाहिए थे टेनिस क्रिकेट में भी और किसी भी क्रिकेट के मुकाबले में, और उन्होंने मिस जज किया, बिल्कुल ध्यान हट गई थी उनकी, जो मैंने कहा था कि नज़रें आपको गेंद पर रखना होता है। यहाँ पर उनके अगर हम देखें जिस तरह से दौड़ लगा रहे थे तो उनका ध्यान, उनकी नज़रें गेंद पर नहीं थी। Cloud9 और सिंस 2008 Cloud9 का ये एनर्जी ड्रिंक, यहाँ पर शायद उंगली में किसी तरह से चोट आई है, जिस तरह से कैच करने की कोशिश की थी उन्होंने नज़रें भी हटा ली और शायद उनकी अंगुली पर गेंद लगी है, जिससे कि थोड़ा सा उन्हें चोटिल वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 58 रन 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद 2 विकेट गिरे हैं। पहला विकेट गिरा था 3 रनों पर, दूसरा गिरा था 11 रनों पर। So I think he was caught in two minds over there, whether to take the ball closed with his palm up or palm down. And in doing that, he was in no position, just not in the best of the position. It was traveling quickly. It went flat into the trajectory there, and maybe the lights are also flashing there exactly opposite. And this trajectory maybe put him in trouble over there. And looks to be in pain at the moment. I think that finger was really bruised, and it has got swollen over there. Needs some taping. These are the highlights here. Smashing one downtown. Harshad Matundkar tried, but he was also taken for a 6. The batting has been good. Switch it. All the shots on display here. Going across the line and smashing it over. And this was the good ball there from Apali Kalangudkar, getting his first wicket. Then that is a big strike. Tried to go for the next one, but was caught in the deep. Tried to bowl a slower one, but that was hit hard. Belgian striking here from the batters, despite of losing wicket. This was a chance there in the deep covers, extra cover region, and that went for 4. These are the highlights of the first 4.4 overs. Tamil Nadu Supreme Super Kings 58 for 2. They got a very good stand of 33 runs, and the second partnership was only 6 runs. They lost the first wicket on 33, lost the second wicket on 39. So far we have seen 3 boundaries and 6 sixes in the innings of Supreme Super Kings Tamil Nadu. And they have got pretty good batting lineup. But one thing Royal Challengers Goa can do here is get the lower middle order, which was under pressure, which didn't get the victory, which didn't get the finishing line, where the top order had done a remarkable job for the team of Supreme Super Kings against Purvanchal Panthers. So Goa has to get wickets as early as possible. बिल्कुल यही सोच होनी चाहिए, जितने जल्दी से जल्दी गोवा के खिलाड़ियों को वो यहाँ पर आउट करने में कामयाबी हासिल करेंगे। वैसा कि सुप्रीम सुपर किंग तमिलनाडु की टीम ने जो स्कोर बनाया है 58 रन 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद, निश्चित रूप से वो एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए नज़र आ रहे हैं इस समय। और निया ईवी मोटर्स और क्रिक ब्रो ये जो हमारे स्पॉन्सर हैं इस टूर्नामेंट के, जो कि स्कोर इस समय 58 रन 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। विजय प्रताप 33, 16 गेंदों पर उन्होंने ये रन बनाए हैं। शिवालिंगम 2 गेंदों में 7 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि अमीर गाड़ेकर जो कि पहली ओवर काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी उन्होंने की थी, इस ओवर में अब से 10 रन खर्च कर चुके हैं, लेकिन एक विकेट जो उन्हें मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिला है। पहला 33 और दूसरा 39 रन के योग पर विकेट गिरा था। इस बार फिर उसी तरह की गेंद, लेकिन बहुत ही करारा स्ट्रोक, हवा में तैरती हुई गेंद 6 रनों के लिए जानी चाहिए और 6 रन यहाँ पर नजर आए। That was right in the arc. That was right in the hitting range. He reached towards that, and that's over the top. The strikes are getting bigger and bigger, and this is going to be a big threat looming large on the bowlers of Royal Challengers Goa. They cannot allow this total to go past 100 because they've got a formidable bowling lineup. Supreme Super Kings Tamil Nadu. Vijay Pratap looking in ominous form. विजय प्रताप बहुत ही तेजी के साथ रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर ने छलांग लगाकर अपने बाईं तरफ कैच लिया। और विजय प्रताप जो कि काफ़ी घातक नज़र आ रहे थे, 17 गेंदों में 39 रन बनाकर वापस लौटे। तीसरा झटका लगा यहाँ पर एसएसके की टीम को, जो कि 64 रन पर तीसरा विकेट गिरा है। कुल मिलाकर 39 रनों पर दूसरा विकेट गिरा था, और उसके बाद ये अच्छी साझेदारी भी दोनों खिलाड़ियों के बीच में। 64 पे तीसरा विकेट, पहला 33, दूसरा 39 और तीसरा 64 रनों की योग पर। So here is a replay, bowling slightly away from the reach of the batter, back of length, trying to cut away
Well taken by Samarth Gauns, who has been really good behind the wickets as a wicket keeper. They needed this wicket very badly. The Royal Challengers Goa, they got the third one. Current run rate of 12.80. Well, if you look at the bowling figures, Gauresh Nagvekar has conceded 11. You expect that in the power play overs. Harshad Gadekar was very expensive in conceding 19 runs. Amir Gadekar bowled a very good first over, just conceded 3, but he was taken for 17 runs in the previous over, although he picked up a wicket. And Apali Kalangudkar picks up 2 wickets for just 14 runs. But if you talk about the summary, I think Supreme Super Kings will be pretty happy at the moment, having seen a 12.80 in 5 overs. They would like to finish with a projected score somewhere around maybe 100 past. बिल्कुल, अगर 100 से ज़्यादा रन बना लेती हैं तो एक अतिरिक्त दबाव होगा जो बल्लेबाजी चेस करती हुई टीम में होगी. You can see the owners Zamir Ahmed and Mushtaq Ahmed of Royal Challengers Goa, along with Mohsin, who have come here to support Royal Challengers. They have really supported the Goan Stars, Goan team in a big way by getting them here for the President's Cup. There were a lot of rounds. Fairness and transparency in the team selection was done in Goa, and after that we have got these wonderful top 17 players. So great job by Zamir Ahmed and Mushtaq Ahmed, who are really doing a great job for tennis cricket in Goa, giving all the boys here a great opportunity. President's Cup is certainly one of the most prestigious big tournament for 16 states. Goa getting their chance itself is a big honor for the state of Goa, coming here performing against the teams, the mighty Maharashtra, the mighty Pune Pirates, as well as the Tamil Nadu Supreme Super Kings, and next they will be playing against Purvanchal Panthers. It's going to be a big opportunity here for some of the Goan stars performing here at the President's Cup. पावर प्ले का ये छठा ओवर पावर प्ले लिया गया है, जबकि 12.80 का औसत. गौरेश नागवेकर इस बार गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से. गेंद वाइडिस मिडविकेट की तरफ जा रही है 6 रनों के लिए, और बहुत ही करारा स्ट्रोक, ताकतवर स्ट्रोक, स्मैश करता हुआ इरादों को चौंकाते हुए बल्लेबाज वहां पर बहुत ही तेज़ी के साथ शिवलिंगम ने ये छक्का लिया था. 3 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं और स्कोर पहुंचा है 70 रन. जो 100 रनों की बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ हरीश वो उससे परे शायद यहाँ पर टीम जाना चाहेगी. Yeah, absolutely. The way they are going at the moment, they are not intentions of dropping this run rate down. The batters, whenever the ball is in his arc, they are smashing hard. And what I've seen about Shivalingam is he is a hard hitter of the ball. This might be another one. Gauresh Nagvekar has been taken to cleaners here. Back-to-back sixes against Gungru, as is popularly called. He tried a fuller length, which was taken on the leg side in the cow corner region. This time back of length and a great pull shot. Outstanding batting from Shivalingam. और ये मानना पड़ेगा कि शिवलिंगम जो गेंदबाज की रफ्तार है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ टाइमिंग ले रहे हैं, स्ट्रोक को बहुत बल्ले के बीचों बीच ले रहे हैं. और यही खासियत है कि जिसकी वजह से लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के उन्होंने जड़े हैं और स्कोर को एक बड़े विशाल स्कोर की तरफ आगे बढ़ाते हुए 76 पे पहुंचाया है अपने टीम के स्कोर को. और सही टाइमिंग के साथ सही कदमों का इस्तेमाल और फुटवर्क का इस्तेमाल जो उनका हुआ है, उसी की वजह से ये गेंदें गौरेश के बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई तैरती हुई नजर आई. What's good to see is he's backing himself to go for the big one, Shivalingam, and he's looked in no trouble in the first innings or in the first game, in the second game as well. Shivalingam with his footwork, full length, he goes for the drive, and back of length he go for the pull shot, and he's got great swing. You can see he's taking the bat lift high and swinging it widely. And for such persons or for such batters, the slower ball is the most effective ball. बिल्कुल, ये यहाँ पर चौकाया, अचंभित किया गौरेश ने, रफ्तार कम कर दी और अचंभित किया वहाँ पर बल्लेबाज को, जो कि करारा स्ट्रोक लेने के लिए तेज़ी के साथ बल्ला घुमा रहे थे वहाँ पर. तो यही चतुराई होती है, चालाकी होती है किसी भी गेंदबाज की, कि बल्लेबाज की योग्यता को मूल्य मापन करे, उसे पहचाने कि वो क्या करने जा रहा है और उसी हिसाब से अपने गेंदों की लाइन और लेंथ को रखे. इस बार थोड़ी पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार इरादा फिर जाहिर, लेकिन गेंद हवा में तैरती हुई ऊपर और गेंदबाज खुद गेंद के नीचे, और ये कैच उन्होंने लिया. तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर
एसएसके की टीम को चौथा झटका लगता हुआ, और जो बल्लेबाज जो काफ़ी घातक, काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहे थे, वो 19 रन बनाकर पेविलियन वापस लौटे। शिवलिंगम कॉट एंड बोल्ड, गौरेश नागवेकर 6 गेंदों में 19 रन बनाए। तीसरा विकेट गिरा था 64 रन पर, और चौथा विकेट गिरा है 76 रन के योग पर। I think Shivalingam has played his part. This is the power play over. You expect the batter to go after every ball. Once again, little change of pace, length there, dragged a little bit, maybe 2 meters back. He went hard, just climbed on top of him, and a great comeback here from Gauresh Nagvekar. He was taken for 2 sixes, and you require some spine here when you want to make a comeback like this one in the President's Cup, and he has certainly shown that he is a courageous and gutsy bowler. बिल्कुल, अगर आपके पहले 2 गेंदों पे 2 छक्के जब आप पे लग जाते हैं तो आपके कंधे गिर जाते हैं, आप हतोत्साहित हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन अपने मनोबल को बरकरार रखा। नए बल्लेबाज प्रसन्न आए हैं, अपने मनोबल को बरकरार रखा वहाँ पर, और नियंत्रित गेंदबाजी की वजह से वो विकेट लिया उन्होंने शिवलिंगम का। और फिर से देखना है कि यहाँ पर अब बची हुई गेंदों को किस तरह से करते हैं, जबकि प्रसन्न आए हैं जिन्होंने कि इसके पहले की पारी में अच्छे रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। गौरेश 2 छक्के, डॉट विकेट। Yes, and if you see Muthu Pandian and Prasanna, both are on the crease without facing a single ball. And this is where I think Gauresh Nagvekar has to cash in. They need to put pressure and try to see that they get wickets here on a regular basis. बिल्कुल, दोनों ही नए बल्लेबाज इस समय रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, हवा में पुल करने की कोशिश रिवर्स अंदाज में, लेकिन सफल नहीं हुए। और जैसे कि आपने कहा कि उसी कमजोरी को, अभी बल्लेबाज आए हैं, एक भी गेंद उन्होंने खेली नहीं है, उससे ही भुनाए यहाँ पर गेंदबाज गौरेश नागवेकर ने, और लाइन गेंद की जो थी उसे थोड़ा सा बांधे रखा, जिसकी वजह से चकमा खाते हुए वहाँ पर नजर आए बल्लेबाज प्रसन्ना। बहुत ही चतुराई भरी और चालाकी भरी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज। बार पूरी तरह से चूके स्टंप के सामने, अंपायर ने सीधी उंगली आसमान की तरफ दिखाई, तो 4 के बाद ये 5वां झटका लगता हुआ एसएसके के तमिलनाडु की टीम को, और बहुत ही अच्छी नवीतुली गेंदबाजी का ये मैं समझता हूँ कि तोहफा है। It's a brilliant yorker here from Gauresh Nagvekar. Well, the batter was not ready. He bowled at extra pace, and with that some extra gas in him, he fired it in right in the toes of the batter. No other chance for the umpire. He raises the finger, OUT, plumb in front of the wicket as Gauresh strikes 2-1. And that's the exact point I was making about. This is the time that Goan bowlers need to cash in. Both the batters were new onto the wicket, and he struck well here, Gauresh Nagvekar. 5 down, half the side, back to the pavilion of Supreme Super Kings, Tamil Nadu, 76 for 5 in 6 overs. 2 overs left in this game. बिल्कुल, एक ब्रह्मास्त्र होता है, अगर आप अच्छी यॉर्कर डालने की योग्यता रखते हैं तो वो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल वहाँ पर किया गौरेश नागवेकर ने, और शिवलिंगम को वापस भेजा। ऋषि अरविंद वो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ऋषि अरविंद। देखना है कि किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, जबकि यहाँ थोड़ा सा दबाव, जैसे मैंने कहा था कि 2 विकेट जो गिरे थे तो 39 रन बने थे, तीसरा 64 रन पे गिरा, तो ऐसा लगा था कि शायद स्कोर काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन क्रिकेट में जो होता है ना, अनिश्चितताएं जो होती है, चौथा और 5वां विकेट 76 रन के योग पे खोने के बाद अब थोड़े से बैकफुट पे इस समय एसएसके की टीम, तमिलनाडु की टीम नज़र आ रही है। और देखना यह है कि अब जो नए बल्लेबाज आए हैं इस समय, मुथु किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। That's good bowling. Never picked it up from the hands. So they are trying to roll the fingers over. Realizing that pace on the delivery, the batters are swinging really hard. So anything pace off have been successful on most of the occasion. If you see that Yorker, before that Yorker, Gauresh Nagvekar had bowled that beautiful slower ball where the batter missed, and batter thought maybe that next one is going to be another slower ball, and he fired a perfect Yorker. That is the smartness that bowlers need to be in nowadays in tennis ball cricket. बिल्कुल, टेनिस कोई भी क्रिकेट हो, अगर गेंदबाज अपना चतुराई का इस्तेमाल नहीं करे, अपने चालाकी का इस्तेमाल नहीं करे, तो वो अच्छे गेंदबाज नहीं बन सकते। बैट्समैन से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि योग्यता और ज़्यादा मेहनत गेंदबाजों को करनी होती है एक अच्छा गेंदबाज बनने के लिए, और वही गेंदबाज सफल होता है जो हमेशा हर तरह के बल्लेबाजों के लिए अपने हर अस्त्र शस्त्र को तैयार रखे। काफ़ी मेहनत के बाद एक मध्यम तेज़ गति का गेंदबाज निर्माण होता है। देखना कि हर्षद मातोंडकर किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। इस बार फिर मिडल ऑफ स्टंप पे पड़ी हुई गेंद, उसे पुल कर दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है 4 रनों के लिए।
It's a bad delivery there. Shot down the leg side, and the man in the deep was more towards the square leg region. So he just pivots himself, swivels and plays it down, well placed, and deserves a boundary. स्कोर बढ़कर पहुंचा है 82 रन 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। इस 7वीं ओवर डाली जा रही है। 12.62 का औसत इस समय चल रहा है। हर्षद गेंद करने के लिए तैयार, सामने मुथु पांड्यन। ओहो, बाहर निकलकर कट करना चाह रहे थे। गेंद की लाइन पूरी तरह से चुके बल्लेबाज। विकेट कीपर ने बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही सफाई के साथ विकेट के पीछे कलेक्शन किया गेंद का और लौटा दिया गेंदबाज के पास। Yeah, and smart bowling. The earlier one was more closer to the body. This one he kept it slightly wide. Yeah, this was missed by the batter, missed by the keeper. Runs down for 4 byes. I think the batter thought maybe a slower ball, and he fired it in. Harshad, the batter was not ready. Surprising the batter, surprising the keeper. लेकिन जो भी हो, नतीजा जहां तक है एसएस के ये फेवर में है। 4 रन उन्हें चाहिए थे, 4 रन मिलते हुए नजर आए। गेंद की लाइन से पूरी तरह से चुके थे वहाँ पर बल्लेबाज, और उसी तरह से चकमा खाए थे विकेट के पीछे से विकेट कीपर, और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर निकली 22 के तौर पे। और ये तोहफा 4 रनों का जो मिला है उससे स्कोर 86 पे पहुंचा है 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। हर्षद हालांकि नपीतुली गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं, लेकिन फिर भी 4-4 करके, एक 4 22 के और 4 एक चौका और उसके बाद में 2 रन, यानी 4 2 6 4 10 रन अभी तक अपने तरफ से खर्च कर चुके हैं। और हर्षद ने इसी दूसरी ओवर में अभी तक कुल मिलाकर दूसरी ओवर तक 25 रन खर्च कर दिए हैं। इस गेंद पर क्या होता दिखने लगेगा। इस बार दंदनाता हुआ स्ट्रोक सीधा जा रहा है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो बहुत ही महंगे साबित हुए हर्षद, और 6 रनों से स्कोर इजाफा पकड़ता हुआ, गति पकड़ता हुआ 92 के पार 92 पर पहुंचा है। अब 6 गेंदें और देखना है कि और कितनी लंबी अपनी इस रन की श्रृंखला को आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे एसएस के तमिलनाडु की टीम। That was right in the slot. The batter was ready, and you can't bowl him any better nowadays in tennis ball cricket in this slot. Harshad Matondkar does not have pace to worry the batters. The only is the pace variations and the length. You can bowl slightly, maybe the line wider outside the line of off stump, just like he has bowled earlier. But this time it was straight in the hitting range of the batter, and he swings it really hard, and catch well taken in the camp of Supreme Super Kings. You can see that ebullient camp at the moment. They realize that they are cruising towards a good total. Anything above 100 plus is not going to be easy to chase under lights. 92 for 5 in 7 overs, going at around 13.14 strike rate. A partnership of 16 of just 6 balls. Muthu playing on 11 of 5. Rishi Arvind playing on just 1. Most of the bowlers were a little bit on the high side. I think Amir Gadekar was a crucial spell, and I think Sahil Wangankar has been asked to bowl here. In the earlier game, it was Vinay Satarkar who has bowled the last over, was slightly costly, and they're bringing a change here to get Sahil. And Sahil has been smashed. Half tracker. You can't bowl over there. And that's been smacked over the top. Fantastic batting here from Rishi Arvind. शॉर्ट ऑन पोल देखिए किस तरह से पूरा ताकतवर तरीके से उठा लिया था गेंद को, बिल्कुल हाफ वाली पर जैसे उठाते हैं, और गेंद को ले गए थे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों से। बहुत मजबूत इरादे वहाँ पर नजर आए ऋषि अरविंद के, और 6 रनों से स्कोर बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ 98 रन। 5 गेंदों का खेल अभी और बाकी है, और प्रोजेक्टेड स्कोर इस समय अगर इस गति से चलते हैं तो 109 रन बन सकते हैं। और फिर उसी तरह से उठाया गेंद को, लेकिन वहाँ फील्डर पहुँच रहे हैं गेंद के नीचे, कैच कर पाएंगे नहीं, और ये कैच लिया, वहाँ पर झटका लगा, और इसके बाद ये विकेट का पतन हुआ है। 98 रनों पर 5 विकेट गिर चुके हैं। This time he bowled it slightly away from the reach, wide-ish ball. Batter still went after it, gets the leading edge, and this is the line that have fetched them more wickets. I don't understand why they are trying to bowl more closer towards the body or more closer towards the wicket. That has not fetched them success. Once you bowl it slightly wide, many of the batters don't have the shot in the extra covers or the point region. All these shots you can see either the balls were pitched in the slot, they have gone downtown at the long on long off region, or that they have been smacked over the cow corner region.
Wideish line has been successful, but I think Goan bowlers have just made many mistakes here in bowling a straightish line, trying to get a clean bowl or wicket to wicket. That has not been successful. Once again, Sahil Wangankar bowls a little slower off cutter and has been successful in picking up a wicket. 98 for 6. 98 रन बने हैं, 6 विकेट गिर चुके हैं, अब 4 गेंदों का खेल बाकी है और चतुराई जो होनी चाहिए गेंदबाजी को अपने लाइन लेंथ पर बिल्कुल नियंत्रण रखकर गेंदबाजी करनी होगी। बिल्कुल पल्ले में गेंद अगर देते हैं तो स्ट्रोक लगेंगे। इस बार ड्राइव किया ऑन साइड में हल्के हाथों से, केवल 1 रन मिलेगा, लेकिन फील्डर्स काफ़ी डीप खड़े दूसरे रन के लिए पहले निकलना चाह रहे थे, लेकिन देखा कि काफ़ी तेज़ी के साथ फील्डर वहां पर पहुंच रहे हैं। कदमों को वापस खींचा क्रीज में और केवल 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 99 पे पहुंचा है स्कोर। सामयिक तौर से सेंचुरी लगाने के लिए 1 रन की कमी, जबकि 3 गेंदें अभी भी बाकी। Yes, I think Supreme Super Kings Tamil Nadu will be really happy getting 100 past. I think they must have definitely worked out about the Goan batting in the first game against Pune Pirates. Goan team has got good inception with Sahil Wangankar, who can bat well. Another one. This is colossal strike. That's an absolute monster stroke. 105. That's 100 up here for Supreme Super Kings with blazing shot. वाइड इज लॉन्ग ऑन की तरफ से बिल्कुल दनदनाता हुआ स्ट्रोक खेला मुथु ने, मानो तैयार थे इस तरह के स्ट्रोक को लेने के लिए। कंधों का इस्तेमाल, हालांकि दुबले पतले छरहरे बदन के हैं, लेकिन इरादे बिल्कुल मजबूत और नजरें गेंद के ऊपर उनकी आखिरी वक्त तक, जब तक गेंद नीचे नहीं लैंड हो चुकी गई। और इस तरह से 6 रन से स्कोर 105 पे पहुंचा है 6 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। मुथु 6 रन पे 17 रन बनाकर सामने साहिल के। This time all over full toss, want to take the advantage there. Just missed the timing. I think the batter went too hard. A quick running between the wickets. Wonderful running, decisive running. You are coming to the fag end of the innings, almost to the closure of your 8 overs, and you want to give more strike, or the strike on the last ball to your batter, which just hit couple of sixes, and he comes on strike. Smart piece of batting, smart running between the wickets. मुथु खेलने के लिए तैयार होते हुए उन्होंने नकारा था उस रन को, क्योंकि खुद बल्लेबाजी करना चाहते। इस बार गेंद बाहर निकली और वाइड बॉल का इशारा हुआ। और यही होता है जब आपकी नज़रें डटी हुई गेंद पर, तो बल्लेबाज चाहता है कि मैं 1-2 गेंदें बची रही तो मैं ही खेलूं, और वही किया था मुथु ने वहां पर। और लेकिन इस गेंद को नियंत्रित करने के अंदाज में वाइड कर दी साहिल ने, और एक मौका फिर मिलेगा। स्कोर जबकि 106 पे पहुंचा है 6 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। आई थिंक Samarth Gaus has taken a review over there. He feels that maybe it has touched the bat, or maybe the legs over there before going to the keeper. He tried to bowl back off length, lower off cutter, and Royal Challengers Goa have reviewed it. So let's see whether it has touched something or not. The decision is pending. Here comes the ball. So umpire will be assessing in different positions, in different angles, whether the ball has gone down. It's already a great total on the board for Supreme Super Kings. Sahil Wangankar has conceded 14 runs of the over so far, and he'll be bowling the last ball. 106 is quite a total here on the board. He'll be looking for a big one here, Muthu Pandyan. And he gets the big one. What a swing of the bat. That's a great connect. Fantastic innings. 112 on the board for the loss of 6 wickets. Muthu Pandyan has finished in style for Supreme Super Kings. 23 of just 8 balls, and when they have finished their innings, they have got 4 boundaries and 13 sixes. That's quite a lot, quite a plenty here. That shows that Royal Challengers Goa have not bowled and lived up to the reputation, as the bowlers have been picked up fair and transparent manner. They needed to just curtail them to under 90. 112 is quite a substantial total. Supreme Super Kings Tamil Nadu will be very happy. Goa team has their task cut out. Here is the batting card. Venkatesan and Vijay Pratap has given a great start. Venkatesan went early on 11. Vijay Pratap 39 of 18. Magnificent he was. Pradeep just got 1-6 there. Went out on 6. Sivilingam showed his part. 19. Muthu Pandyan was not out.
His was the impactful innings that made the difference into a great finish. Prasanna went out early. Rishi Arvind scored at 1-6, and that's the reason why you see a very good total of 112 runs on the board for the loss of 6 wickets. When you go out on the first innings, here is the bowling card. गेंदबाजी में गौरेश नागवेकर ने 2 ओवर की गेंदबाजी में 23 रन दिए, 2 सफलताएं अर्जित की, जबकि हर्षद मातोंडकर ने 2 ओवर में 31 रन खर्च किए, कोई सफलता उन्हें नहीं मिली। अमित गड़ेकर ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 20 रन दिए, 1 सफलता उन्होंने अर्जित की, जबकि अपाली कलंगुटकर ने 1 ओवर में 14 रन दिए लेकिन 2 सफलताएं उन्होंने अर्जित की, और साहिल वैगनकर ने 1 ओवर में 20 रन दिए और 1 सफलता उन्होंने अर्जित की। कुल मिलाकर इस तरह से 112 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर एसएसके तमिलनाडु की टीम के, यानी जीतने के लिए 113 रन बनाने होंगे वहाँ पर रॉयल चैलेंजर गोवा की टीम को। चलते हैं टॉस के लिए ग्राउंड पे। महाराष्ट्र नहीं चल रहा है अभी, ये चौथा मैच महाराष्ट्र पूर्वांचल अभी बाकी है ना। अरे मनीष बाकी उसके बाद है, तो ये आज का चौथा मैच, जैसे बिहार हरियाणा महाराष्ट्र गोवा तमिलनाडु पूर्वांचल फिर महाराष्ट्र। अच्छा एक मैच है तो 3 4 5 होगा, ठीक है आराम करो। तुमको नीचे भी अभी क्या हो गया, अभी तुम एंकरिंग में हो ना अभी आज से। हाँ नहीं वो तो 2 दिन वाला था, तो मुझे लगा आप करो थोड़ी देर। हाँ नहीं ठीक है, मेरे को जो भी बता देना अगर तुम वहाँ बिजी हो। नहीं मेरा मेन मतलब ये है ऐसा है कि उधर तो चलो जब फ्री है तो ऐसा फ्री है तो चलेगा। अच्छा वो चला गया दूसरा एंकर? नहीं वो है ना। अच्छा वो भी है। नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला कि सर आप करो तो देखो शुरू कौन हम करें आप करें? यहाँ पर करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मनीष सिंह सर, पूर्वांचल के इस टीम के सेक्रेटरी और टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजर। बाराबंकी बिग बैश जो होती है इसके एक प्राउड ऑर्गेनाइजर हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। मैं मनीष सिंह सर से रिक्वेस्ट करता हूँ सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। पूर्वांचल की हमारी जो टीम है पूर्वांचल पैंथर्स, उनके साथ जुड़ते हुए हमारे इस ITCSF की भी जान बन चुके हैं। मैं दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट करता हूँ, पुणे पायरेट्स महाराष्ट्र जोन 2 के कृष्ण सातपुते और पूर्वांचल पैंथर्स के रवि बनारस, कैन बी हैव यू ऑन द स्टेज फॉर द टॉस सेरेमनी। टॉस लाया जाए प्लीज। तो जैसे कि हमारे रिचुअल है, एक तरफ है प्रेसिडेंट कप और दूसरी तरफ है ITCSF। सर ये कॉइन आपके हाथों, कौन कॉल कर रहा है? कृष्णा, चलिए। कृष्णा ने कॉल किया है ITCSF और आया है प्रेसिडेंट कप। तो यहां पर रवि बनारस ने टॉस जीत लिया है। पूर्वांचल क्या करना चाहेंगे इस बार? फील्ड फर्स्ट।
फील्ड फर्स्ट वही स्ट्रैटेजी रही है पिछले मैच में भी, यहाँ भी कुछ अलग करने की कोशिश होगी इस मैच में? कोशिश करेंगे कि कम से कम रोका जाए और आसानी से चेस किया जाए. चलिए आपको ऑल द बेस्ट. कृष्णा पुन्हा एकदा बॅटिंग करतोय. मगाशी सुद्धा बॅटिंग हवी होती, बॅटिंग मिळाली. याही वेळेला टॉस नाही जिंकलाय पण बॅटिंग करतोय. खरं सांगायचं झालं तर आम्ही जे प्लॅन बनवला टॉस जिंकला असतो तर आम्ही बॅटिंगच करण्याचं ठरवलेलं, कारण पहिली मॅच जिंकली, दुसरी मॅच आम्ही बिंदासच खेळायचं ठरवलं, त्यामुळे आम्ही बॅटिंगच घेणार होतो आणि जे पाहिजे ते आलं. पहिल्या मॅचमध्ये परफॉर्मन्स थोडंसं वर खाली राहिलं पण ते नक्कीच सुधारण्याची संधी आता या मॅचमध्ये आहे. 100% सुधारण्याचा प्रयत्न करेन. जसे आता यंग प्लेअर आहेत, चांगल्या संधी भेटली पाहिजे आणि चांगलं करत आहेत ते, आणि आता मी त्यांना बूस्ट करतोय आणि आता ह्या मॅचला देखील माझा परफॉर्मन्स नक्कीच होईल. ऑल द बेस्ट आप दोनों को, कंग्रेचुलेशंस एंड गुड लक फॉर दिस गेम. थैंक यू सो मच. वेल इसी बीच यहाँ पर टॉस तो हो चुका है. पुणे पायराइट्स वर्सेस पूर्वांचल पैंथर्स. यहाँ पर टॉस हुआ है. पूर्वांचल पैंथर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया है, लेकिन एक बहुत अहम बात, बहुत अहम चीज़ यहाँ होनी ज़रूरी है. टेनिस क्रिकेट की जगत से जुड़े हुए कुछ नायाब सितारे पिछले 2 दिनों में हमने खोए हैं, उनको याद करना ये हमारा परम कर्तव्य बनता है. तो मैं चाहता हूं कि स्टेडियम में जितनी हमारी ऑडियंस, जितनी डिग्निटरीज, जितने क्रिकेट प्लेयर्स और जितनी ऑडियंस यहाँ मौजूद हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं उन शख्सियतों को हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए. अगर आपने कैप पहनी है, गॉगल्स पहने हैं तो प्लीज़ कुछ देर के लिए निकाल लीजिए. हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कुछ ऐसी शख्सियतों को जिन्होंने इस टेनिस क्रिकेट की जगत का एक नायाब सितारा बनने की चाह में खुद की एक अलग पहचान बनाई. हम बात कर रहे हैं अनिल गुरव जी की, जिन्हें टेनिस क्रिकेट का विव रिचर्ड्स कहा गया था. आचरेकर सर के ये स्टूडेंट रहे हैं और हमेशा रमाकांत आचरेकर जी सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली को कहा करते थे कि अगर आपको खेल में सुधार लाना है तो आपको अनिल गुरव जी को देखना है. आज उस शख्सियत को हमने खोया है. उन्हें हम याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे. और उनके साथ अजीत पुत्रान जी जो प्रेसी के लिए खेले हैं, प्ले बॉय के लिए खेले हैं, शशि ब्राइट के लिए खेले हैं, सुनील गावस्कर जैसे लेजेंड और दिलीप वेंगसरकर जैसे लेजेंड्स के साथ भी दादर यूनियन क्लब के लिए वो खेले हैं अपने अर्ली डेज में. उन शख्सियतों को याद करते हैं, इन दोनों शख्सियतों को याद करें. मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं अपनी कैप निकाल लें और जितने ऑडियंस में भी हमारे लोग यहाँ बैठे हैं वो प्लीज़ अपनी जगह पर खड़े हो जाएं. हम श्रद्धांजलि अर्पित करें. ओम शांति शांति शांति. आइए तो इन क्रिकेट की महारथियों को हम याद करते हुए बढ़ते हैं हमारे इस अगले गेम की ओर, जहां पर गोवा की ये टीम आपके सामने मौजूद है. एक बड़ा लक्ष्य यहां पर तय करने के लिए तैयार है. 113 जो अब तक का एक बड़ा टारगेट रहा है इस पूरे सीरीज में, अब तक जितने भी मैचेस हुए. चलिए देखते हैं यहां पर होगा क्या. तमिलनाडु ने एक बड़ा टोटल दे दिया है चेस करने के लिए. 113 यहां चेस होता है या नहीं ये बस कुछ देर में पता चलेगा. ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स. रॉयल चैलेंजर्स गोवा वर्सेस सुप्रीम सुपर किंग्स तमिलनाडु. ओवर टू द कॉम बॉक्स. धन्यवाद विनीत देव. तो अभी अभी श्रद्धांजलि अर्पित की गई अजित पुत्रन जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, शशि ब्राइट, प्रेसी और प्लेबॉय जैसी टीम की उन्होंने नुमाइंदगी की. और काली ज़बान वाला क्रिकेटर, मतलब ये बोलकर विकेट लेता था, बोलकर मैच जिताता था. और दादर यूनियन जैसे ऐतिहासिक क्लब में सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर के साथ जिन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, ऐसा अजीत पुत्रन. और अनिल गुरव, आज माइम जुवेनाइल की मैं बात करूं तो सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली जो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रमाकांत आचरेकर सर के निगरानी में क्रिकेट सीखे, उन्हीं के एक स्टूडेंट थे. और कहा जाता था कि अनिल गुरव की बैटिंग देखो. तो ये बहुत बड़ी बात है. ऐसे 2 टेनिस क्रिकेटर हमारे बीच नहीं रहे और पूरे टेनिस आलम की ओर से हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिले तथा उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे, ये हम प्रार्थना करते हैं. पहला ओवर लेकर आ रहे प्रसन्ना सुप्रीम सुपर किंग्स के लिए. मेरे साथ विवरण कक्ष में जुड़ चुके एक उभरते हुए जोशीले पूर्वांचल की आन बान शान सुजीत शान, आपका स्वागत है. शुभ संध्या. शुभ संध्या. धन्यवाद सर. So that's the first delivery, curving away from the right-hander.
For our Tamil Nadu viewers, we will continue in English, and Sujit Chan will speak Hindi from Goa perspective and rest of India perspective. 14.43 is the required run rate. Saish Zore and Rajat Kudalkar are the two openers. Prasanna bowls this time, and that takes the aerial route. What a sensational six that is. पहली गेंद फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया और गेंद को भेजा है सीधे दादोजी कौंदेव स्टैंड में। पहला सिक्स आता हुआ रजत कुंदालकर के बल्ले से। Kudal is a place in Konkan, and people who belong to Kudal are known as Kudalkar. And look at the way he has connected that. High and handsome. Huge six. Prasanna bowled very well in the previous game, and he shall need to continue his consistency. But then Rajat Kudalkar is determined. The way he played that shot, he has gone berserk from ball number one. That's another cracking shot, and this will be flat six. इस बार बैकफुट पर गए, जगह बनाई, धनुष के मुद्रा में होते हुए गेंद को लॉफ्ट कर दिया है सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। Prasanna coming in round the wicket, over pitch delivery and a lofted cover drive. What an elegant shot that is. And 2 out of 2. Goa, Royal Challengers Goa are now 12. They are royal, they are giving challenge, and they are Goa. Every Goan citizen must be shouting, "Go Goa." Goa is known as a tourist place, but they have got an excellent cricket setup as well. Prasanna this time attempted switch it and misses it. Something unusual by the batter. पिछली 2 गेंदों में उन्होंने 2 बड़े अच्छे स्ट्रोक्स लगाए। ये गेंद लोअर फुल टॉस थी, क्रॉस बैटेड शॉट का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई मिलन नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। Lower full toss ball swept away nicely, and that will sprint to the fence for a marvelous 4. लोअर फुल टॉस गेंद थी, अपने आप को गेंद की लाइन में लाए, थ्रू द लाइन जाकर डीप मिड विकेट के ऊपर शॉट खेला है। 2 खिलाड़ियों के बीच से निकली है, सीधे सीमा रेखा के बाहर जाती हुई एक और बेहतरीन उत्कृष्ट चौका। That ball hits the skirtings of Mahindra Rise, known as Toblerone. Toblerone chocolate has the same shape, and that's how cricket's glossary of terms describes the skirtings on the boundary line as Toblerone. Score 16. Saish Zore yet to take a strike. Rajat Kudalkar not out on 16 of 5. All 16. The sweet 16 in the name of Rajat Kudalkar. Rajat means silver, and silver is in demand. Silver is required in semiconductor microchips. Silver is required in weddings. Silver is a good way to invest, and Rajat Kudalkar is investing in runs for Goa. Match number 15 scores 16. Dot ball 6, dot ball 4. Super start. 113 is the target, and they have started well. This time again in the air, and it will be a huge sixer. 22 runs, and look at the Goa team. They are enjoying it. Sujit Bhai, if you go to Goa, you eat cashew nuts, you drink fenny, you roam in the beaches. But how good is Goan cricket? What you saw just now? Your thoughts? रजत कुडालकर ने 6 गेंदों में 22 रन किए, 366 की स्ट्राइक रेट से पहले ही ओवर में अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया।
यहाँ पर सुप्रीम सुपर किंग्स ने 112 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे। उनकी पारी में 13 सिक्सेस और 4 चौके आए थे। वैसी ही सदी भी शुरुआत की है। यहाँ पर एक ओवर में 3 छक्के 1 चौके लगाए हैं रजत कुडालकर ने। अभी सैस जोरे को अपना खाता खोलना बाकी है। So that's a Mahindra Thar Rocks. It will be given to the player of the tournament. Best batter, best bowler and best under 23 players gets a Nia EV bike. Plenty of prizes as a man of the match and lots of prizes for the spectators via lucky draw. ITCSF presents President Cup India 2026 and it's indeed a great honor for the Indian tennis cricket. 16 states are participating, one team per state. Of course, Maharashtra has 2 teams, 22, record run rate 13 per over. Start of the new over by Babu. Babu bowled very well in the previous match, and that's a dot ball. पिछले मैच में प्रसन्ना बहुत ही किफ़ायती और विकेटें निकाली थी। बाबू ने भी उस मैच में दमदारी से गेंदबाजी पेश की थी, लेकिन यहाँ पर पहले ओवर में जहाँ प्रसन्ना ने 22 रन खर्च किए हैं, कहीं ना कहीं बाबू के ऊपर अब थोड़ा दबाव होगा, प्रेशर होगा। I wanted to go for a switch hit, risky run. He is running for his life. A costly mistake, and that's a bye. Was this required, Sujit? अभी हम देखें तो जो करंट रन रेट है वो 17.25 का है और रिक्वायर्ड रन रेट 13.5 की ज़रूरत है, यानी 40 गेंदों में 90 रनों की आवश्यकता है यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही, बेतहासा बेइंतहा खूबसूरत रजत कुडालकर के द्वारा 6 गेंदों में 22 रन। हालांकि सैस जोरे अभी उनका खाता खोलना शेष है। Over pitched and missed time. Will this be a first wicket? Oh, that's a dropped catch. In a crucial tournament like this, you need to convert half chances into full chances. He sprinted like a 100-meter sprinter, but that ball just fell short, and life given to Rajat Kudalkar on 22. Now he's on 23 with a single. Mistimed it. सुप्रीम सुपर किंग्स को डू और डाई मुकाबला है, उनके लिए ये मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ये रजत कुडालकर जो काफ़ी यहाँ पर मुश्किलें पेश कर सकते हैं, कहते हैं कि कैच छोड़ो मैच छोड़ो वाली सिचुएशन है। और ये भी नहीं भूल सकते कि पिछला मैच जो बहुत क्लोज वो हारे हुए है, तो इस मैच में कहीं ना कहीं सुपर किंग्स को वापसी करनी पड़ेगी। Supreme Super Kings are trying all the tactics, but this time it beats everyone, batter, wicketkeeper and the fielders, and this will be a very good 4 runs by way of a byes, 28 without loss. और जब बल्लेबाजी कर रही थी यहाँ पे सुप्रीम सुपर किंग्स, तो 1.5 बॉल पे 24 रन किए थे, वहाँ भी उन्होंने भी कोई विकेट नहीं खोया था। और हम यहाँ पर अभी भी देख रहे 28 रन बने हैं 1.5 बॉल पे 8 ओवर के मुकाबले में, 37 गेंदें 85। अभी भी मैच में सुप्रीम सुपर किंग बनी हुई है, मुकाबला फाइट होगी, बहुत ज़बरदस्त संघर्ष देखने को मिल सकता है। That's a falling sweep and oh my God, what a sensational shot, and these are 4 valuable runs. Dugout looks happy. ये एग्रीकल्चर शॉट माना जाता है और ये जिस तरीके से बैठे हैं, बैट का फेस खोला है, आसमान की तरफ गेंद को भेजा है, सीधे सीमा रेखा के बाहर स्टैंड में एक बार फिर डिलीवर होती हुई इस छक्के के साथ कहीं ना कहीं रजत कुडालकर की जो हिम्मत है, वो कैच बार बार याद आ रहा होगा जो कैच ड्रॉप हुआ है। Saish had a wish to finish, and the way he has given that finishing touch on that stroke, marvelous. 2 overs 32 without any wickets. It's a flying start. Rajat Kudalkar, he is the
run powerhouse, 7 balls 23. Sai Zore 5 balls and 4 runs. Babu 1 over 5 runs. A better over compared to the previous one. 22 came off the first, 5 of the second, and 32. So now 36 balls and 81 runs. And batting power play is being taken. This is the first time the batting power play is taken in third over. 12 balls, 32 runs partnership. Sujit, every team takes batting power play in 5th over, 6th over, or by default 7th. This is the first time we are seeing third over batting power play. What do you would like to say? रजत कुडालकर सेट हो चुके हैं, सैस जोरे भी अब यहाँ से उनके भी बल्ले पे गेंद लगने लगी है और अब बैटिंग पावर प्ले का इशारा हो चुका है। इस बैटिंग पावर प्ले में 3 खिलाड़ी बाउंड्री सीमा रेखा पर तैनात रहेंगे। इस ओवर को मैक्सिमाइज करके जो 36 गेंदों में 81 रन है उसके अंतर को कम करना चाहेंगे। Very well said. Sujit Shah analyzed it, and this is the third power play over. That's the first two were the mandatory batting, mandatory power play, and this is the batting power play. If Rajat and Saish can take about 20 runs in this over, we have a match on the hand. They have not lost a wicket, let me tell you. Udalkar to face Vignesh. Vignesh took 3 wickets in his previous game. He is a nippy customer and very cunning and foxy bowler. And Rajat Kudalkar will have to deal with him with extra caution. Vignesh Aim bowling from the far end. And that's a mistime stroke. Will this be a wicket? Yes, it is. And Supreme Super Kings get their man. Kudalkar gone. रजत कुडालकर इस ओवर को मैक्सिमाइज करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के स्टिकर पर ऊपरी हिस्से पे जाके लगी है। और यहाँ इस पिच के बारे में सर जो मैंने 2-3 दिनों में जो मुझे महसूस हुआ, यहाँ जो पेसर्स है उनको उछाल मिल रही है और जब गेंदें ज़्यादा उछल रही, हालांकि जो बल्लेबाज को उछाल पसंद है वो अच्छे स्ट्रोक्स भी लगा रहे हैं, तो उछाल के कारण बल्लेबाज यहाँ थोड़े भयभीत हुए, हतोत्साहित हुए और अंततः उनके विकेट का पतन होता हुआ। और एक बहुत ही अद्भुत कैच यहाँ पर लेते हुए नजर आए प्रसन्ना, जिन्होंने एक ओवर में 22 रन दिए थे, लेकिन इस कैच से कहीं ना कहीं उनको थोड़ी अपने अंदर हिम्मत और जोश मिलेगी। Very well judged catch. They dropped in on 22 and they have grabbed him on 23. Previous delivery was a dot ball and that pressure was playing on his mind. You cannot afford to go under pressure when you are playing a game like this. Need to handle the pressure. Samarth Gavas, Newman, righty batter. Beautiful graphics by Monarch. Stump to stump and bottom end in place. Single. It will be very interesting how Samarth Gavas supports Saish Zore. One of these batters will have to cut loose and score big. First wicket fell on 32. 5 byes. 113 is Burj Khalifa score. You got to chase down that score. We saw last night 109 being chased and then 103 runs where the match got tied. Anything is possible. Oh, ducked it. Is he playing a test wicket? अगर हम देखें विग्नेश का ये ओवर जो बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, 4 गेंदें हो चुकी हैं, सिर्फ 1 रन खर्च किए और 1 सफलता उन्हें मिली है और उनकी इकोनॉमी इस ओवर में 1.5 की, मतलब बिल्कुल बाध्य कर दिया है, बल्लेबाजों को परेशान करके रखा है। अलग अलग लेंथ, अलग अलग विभिन्न जगहों पे गेंद डाल रहे। Variety is very important. Who doesn't love variety? Everyone needs a variety. Variety in food, variety in wear and gear. And the third umpire being taken. If you look at the comparison, 4 boundaries and 13 sixes were hit. In the reply, 2 boundaries and 3 sixes so far. But this has been the best over so far. Vignesh has given just 1 run and 1 wicket.
Nice release, and umpires are looking at the imaginary line and will decide whether that's a legal ball or that's a wide ball or a no ball. अभी भी हम डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। प्रसन्ना एक ओवर में 22 रन, दूसरे ओवर में आए 5, तीसरा ओवर जारी है। So that was a legal ball, and this time trying to pierce the gap between the two and rightly picked up. Fielding is going to be a crucial factor. Majority of the teams come with a similar kind of bowling and batting power, but it's the fielding that's X factor. And score after 3 overs is 34 for 179 required of 30. Saish Zore 5 of 8, Samarth Gavas 1 of 1, Vignesh 1 over 2 runs and 1 wicket. ये मैच विनिंग ओवर हो सकता है जिस तरीके से विग्नेश एम ने ओवर डाला है। सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने जो काफ़ी खतरनाक मंसूबे के साथ रजत कुडालकर बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका विकेट लेकर कहीं ना कहीं यहाँ आरसीजी के खेमे में, रॉयल चैलेंजर्स गोवा के खेमे में जो है थोड़ा डग आउट को परेशान किया है। आए हैं नए बल्लेबाज गवस, 3 ओवर 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और जब सुप्रीम सुपर किंग बल्लेबाजी कर रही थी तो उन्होंने 33 रन बनाए थे, लेकिन बिना विकेट के नुकसान पे। So very useful information. There's no boundary hit since last 6 balls and 22 runs have come of last 15 balls. Lot of analytical data by Monarch as we commence the new over. Start of the fresh over. Nice extension of arms. A risky run. Goa batters are struggling now. Babu M is into his second over, and this will be the 4th over of the second innings. Both the teams missed out on their first match. Pune Pirates defeated Royal Challengers Goa, and Supreme Super Kings, they lost match against Purvanchal Panthers. So this is a must-win game. Out of 3 league games, if you lose 2, then your chances of making it to the quarterfinals reduces. Of course, on the first day, Karnataka Royal Kings were able to do that. That's a towering shot, and it will land outside the boundary ropes, a massive 6. फुलर लेंथ की गेंद थी, अपने आप को बैकफुट पर गए, बल्ले का फेस खोला और सीधे इस बार भी डिपॉजिट किया है। स्टैंड एंड डिलीवर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री सीमा रेखा के ऊपर जाती हुई 6 रनों के लिए एक और बड़ा सिक्सर आता हुआ। इंपॉर्टेंट 6 अगर देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स गोवा के लिए। Samarth Gavas showing his class, and that was a catch taken by a spectator. Another biggie, and that's a biggie wiggy. Gigantic 6. छोटी गेंद, बड़ा शॉट, थैंक्स अ लॉट। 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम लगाकर एक बार फिर से ये मुंबई है जनाब, यहाँ सपने भी बड़े होते हैं और शॉट्स भी बड़े होते हैं। अब 27 गेंदों में चाहिए 66 रन। इन 2 छक्कों ने एक बार फिर सुप्रीम सुपर किंग्स तमिलनाडु को बैकफुट से फ्रंट फुट पर ला दिया है। Royal Challengers Goa. Look at the way that shot's played by Samarth Gavas. 3 balls 13, and that's a blitzkrieg that's being experienced on the field. Strike rotation, stroke selection, these are the 2 important aspects. 8 balls 16 runs partnership, 48 for 1, 26 balls 65 to win. 2 boundaries and 5 sixes are hit so far in the first
4 overs. In fact, we have 2 more balls to go. If couple of sixes can come now, that will do the world of good. Switch it and single, 49 for 1. So still the match is a long way to go, but yes, they have started the journey to chase down 113. No score is big. Your mindset should be good to chase any score in the world. 49 for 1, required 115.36. But if couple of sixes are hit back to back, it will go down. Oh, what a shot! That's a slog sweep, par excellence. श्लॉक स्वीप किया था। जैसे ही गेंद बल्ले को लगी वैसे ही ये फील होने लगा था कि ये जाएगी। वाओ, बहुत ही अतुलनीय अलौकिक सिक्स। देखने में कितना सुंदर लग रहा है ये सिक्स। स्लॉक स्वीप के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन 1 विकेट के नुकसान पे। यहां पर गावस और जोरे के बीच में एक बड़ी साझेदारी होती हुई पहला विकेट की जो साझेदारी हुई है वो 32 रनों की हुई थी और दूसरे विकेट के लिए अब तक 10 गेंदों में 23 रन जोड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज। अच्छी साझेदारी होती हुई अगर हम कंपैरिजन करें 4 और 6 का तो यहाँ पे अब तक 6 छक्के और 2 चौके लगा चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स गोवा। 13 छक्के 4 चौके लगाए थे जब सुप्रीम सुपर किंग्स तमिलनाडु बल्लेबाजी कर रही थी। अब यहां 24 गेंदों में 58 रनों की जरूरत है। पावर्ड बाय रुनवाल रियल्टी, को स्पॉन्सर महिंद्रा राइज, को स्पॉन्सर प्रताप सरनाइक फाउंडेशन, को स्पॉन्सर सिक्सिट, एसोसिएट पार्टनर निया ईवी मोटर्स, ऑफिशियल स्कोरिंग पार्टनर क्रिक ब्रो, ब्यूरेज पार्टनर क्लाउड 9, योर ब्यूरेज पार्टनर क्लाउड 9 एनर्जी ड्रिंक जिसमें आपको बी कॉम्प्लेक्स, मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर ग्राउंड वाले ए स्पोर्ट कुलूस, SD18 स्पोर्ट्स एंड 68 और यूट्यूब लाइव ब्रॉडकास्टिंग आयुष रॉकर्स और टेनिस cricket.in। इवेंट मैनेज्ड बाय अल्टीमेट इवेंट मेकर्स LLP। वी क्रिएट यू सेलिब्रेट। इस वक्त हम मौजूद है थाने के दिल ऐतिहासिक मैदान दादोजी कामदेव क्रिकेट स्टेडियम। इस दुधिया रोशनी में जगमगाता हुआ अलग अलग लाइट्स, काफी शानदार यह विहंगमय दृश्य हम सभी की आंखों को नमी प्रदान करता हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण मैच। ये देखें इंस्टेंट एनर्जी क्लाउड 9 अलग अलग कलर में आता है। बहुत ही इसमें मल्टी विटामिन्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी की जो जरूरत होती है वो पूरा करता है। कार्बोनेट वाटर और उसमें बी कॉम्प्लेक्स मिला रहता है। ये देखिए हमारा प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 खेलो जी जान से, और जी जान लगाना पड़ेगा अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए RCG रॉयल चैलेंजर्स गोवा को। गोवा जो एक छोटा राज्य माना जाता है हमारे देश का, लेकिन उसकी संस्कृति कल्चर बहुत ही, वहां बीचों का शहर कहा जाता है। वहीं तमिलनाडु जहां के मंदिरों का शहर कहा जाता है। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, रामेश्वरन टेम्पल, इंपैक्ट कानन एन आए गेंदबाजी करने के लिए। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर शुरुआत की है, लेकिन यहां वाइट के साथ अगर हम देखें यहां पर 47 रन पर 2 विकेटें गिरी थी जब सुप्रीम सुपर किंग्स बल्लेबाजी कर रही थी 4 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन यहां रॉयल चैलेंजर्स गोवा
काफी आगे नजर आ रही है। 56 रन की 1 विकेट के नुकसान पे 14 का रन रेट चल रहा है और रिक्वायर्ड रन रेट भी 14.25 ही आ सकता है। फुल टॉस गेंद थी लेकिन इसको कन्वर्ट नहीं कर पाया, फिर भी गेट ट्रबल हुई, फंबल हुई है। 1 रन पूरा किया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। यहाँ पे बहुत सारे जो दर्शक आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। मैच नंबर 15 इस वक्त चल रहा है, प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026, जो अब प्रेसिडेंट कप अब एक प्रतिष्ठित कप बनता जा रहा है। इसकी गूंज सिर्फ भारत ही नहीं अन्य देशों की तरफ भी जा रही है। हालांकि इस बार मिडल ऑफ द बैट नहीं हुई है, स्वीट स्पॉट हिस्से पर नहीं आई है, फिर भी बल्लेबाज ने दौड़कर यहां पर 1 रन एकत्रित कर लिया। इस 1 रन के साथ सहज जोरे अब तक 11 गेंदों का इन्होंने सामना किया है और 8 रन बनाए हैं। वहीं हम गवास को देख रहे हैं 6 गेंदों में 21, एक बढ़िया कैमियो खेल रहे अपने टीम के लिए। 4.2 गेंदे 58 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस बार थोड़ा विचित्र ढंग से खेला है लेकिन गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पे 6 रनों के लिए। What an improvisation by Saish Zore, and that was like a 440 watts current. Shot of the night. Where did this came from? High and handsome, lovely falling sweep. Reminding you of Rohan Babulal Kanai of West Indies, who started playing such shots as a pugnacious young man. 64 for 1. Let's look at the comparison at this stage. In the first inning, 54 for 2. Second inning, 64 for 1. A required run rate and run rate almost neck to neck. ये मुकाबला कट टू कट है, हार जीत का जो फासला बहुत छोटा होने वाला है। तमिलनाडु पिछला मुकाबला भी गवाई है बहुत ही कम मार्जिन से। यहाँ उनके लिए मैदान पर संघर्ष कर रही है, लड़ाई लड़ रही है, जोश जुनून जज्बा सब कुछ अपना लगा रही है, लेकिन उनके सामने रॉयल चैलेंजर्स गोवा के दोनों बल्लेबाज छाए हुए। यहाँ पर सहज जोरे ने एक बहुत ही विचित्र ढंग से वो शॉट खेला था, छक्का हासिल किया गवास। इस बार बल्ले का स्पर्श गति भी गई है, रन आउट का कोई मौका नहीं, संभवतः बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित पहुंच चुके थे। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा अब 66 रन 1 विकेट के नुकसान पे 113 के जवाब में। 19 गेंदों में 47 रनों की नितांत आवश्यकता है। अगर इस सफर तक पहुंचती है रॉयल चैलेंजर्स गोवा तो उनके लिए आगे के जो रास्ते हैं वो और खुल जाएंगे। वही डू और डाई मुकाबला है यहाँ पर तमिलनाडु टीम के लिए। वो अपनी किंग्स हैं उनके नाम में, किंग्स मतलब सुल्तान, अपनी सल्तनत को बचाना पड़ेगा तमिलनाडु टीम को। अच्छी गेंद बैकफुट पर गए, बढ़िया कट किया है, उस और फील्डर भाग रहे, फंबल हुई है, क्या गेंद को रोक पाएंगे? और अंपायर ने यहां चौके का इशारा कर दिया है। आज कुछ भी सही साबित नहीं हो रहा है तमिलनाडु के लिए, पहले मैच में भी और इस मैच में भी। Excellent placement, chase for the fielder, and he did a good job, but then he turned and could not stop. Again the ball touching the Toblerone, and 5 overs 70 for 1, run rate 14, required run rate 14.33. Let's look at the comparison. In the first inning the score was 64 for 3 after 5 overs, and now they are 6 runs ahead and they have lost 2 less wickets. 16 balls and 38 runs partnership. This is the deciding partnership. The first wicket fell on 32. They are doing good right now at 70, and the next 2 overs will decide the tone of the match. If they can bring the equation to 6 balls 12, 6 balls 15, it will be great. He is wearing a different glasses, a kind of a glass cum helmet to protect the eyes, and a bowling change. Impact player Kannan has given away 15 runs and not conceded, rather not taken any
wicket so far. So 6 extras, 5 byes and 1 wide. In the first innings 4 fours, in the second innings 3 fours, in the first inning 13 sixes, in the second inning 7 sixes. They need 6 more sixes and it will be done. या अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुई ऑफ कटर डाली थी यहाँ विघ्नेश ने। सामद गवास जिन्होंने अब तक 8 गेंदों में 22 रन बनाए हैं। और सर आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर ये ओवर डिसाइडिंग ओवर साबित हो सकता है। और सर मेरे साथ मैं बताना चाहता हूँ माई ड्रीम कम्स ट्रू। इसी बीच बल्ले पर गेंद आई है, क्या यह दूरी तय कर पाएगी? नहीं तय कर पाएगी। विघ्नेश एम को मिली है यह सफलता। विघ्नेश एम जिन्होंने वो बैटिंग पावर प्ले में ओवर डाला था, वही गेंदबाज को वापस आक्रमण पर लगाए फॉरइन से। और उन्होंने एक लौते ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। और रॉयल चैलेंजर्स गोवा को लगातार वो चैलेंज कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। और ये इंपॉर्टेंट विकेट हो सकती है। यहां सामद गवास 9 गेंदों में 22 काफी अच्छे लग रहे थे बल्लेबाजी से। वेंकटेशन ने कैच को पकड़ा है। These skiers are never easy under the floodlights. It was a full toss ball and a tantalizing delivery where he couldn't resist his temptation, went for a big one, got the height but not the distance, and what a catch taken by Venkateshan. And this is a good comeback by team in yellow. 70 for 2, 16 balls and 43 runs. They need to score at least 2 sixes out of next 4 balls in order to come to an equation of about 12 balls 35, 12 balls 30 runs. If they come to 12 balls 30 and then 6 balls 15 or 6 balls 12, it will be great, as Mohit Gaonkar is the new man joining in. अपील की जा रही है अंपायर से, जोरदार अपील की जा रही है और अंपायर की उंगली फिजा में लहराती हुई, यानी विघ्नेश एम ने मैच में वापसी करवा दी है। 2 गेंदों पे 2 बैक टू बैक 2 विकेट लेकर। He has completed the brace by taking 2 wickets, and on a hat trick Mohit Gaonkar departs without bothering the scorer. And this over is going to be the turning point. In the first match also, Vignesh took 3 wickets, but he missed out on winning the match. But this time they are determined. Up till now everything was hunky-dory, but now all of a sudden they are on the back foot by 6 runs and they have lost equal number of wickets at this stage. Perfect plumb LBW, stump to stump, and Vignesh M gets rewarded for bowling an immaculate line and length. हमने देखा है ज्यादातर जो गेंदबाज है वो लेग कटर्स डालते, लेकिन विघ्नेश एम दोनों तरफ विविधताएं, डाइवर्जन नजर आई। गेंद के बाद गिरने के बाद अपना काटा बदली सीधे प्लम हुए है। और यहां पर सुप्रीम सुपर किंग्स तमिलनाडु को जब जीत की जरूरत महसूस होती है तो विघ्नेश एम को ओवर दिया जाता है। अब तक 1.3 ओवर्स में उन्होंने 2 रन देकर 3 विकेटें निकाली है। करिश्माई जादू भरी गेंदबाजी करते हुए इस वक्त So Imran Mullah is an impact player and he has come into bat on a hat trick. इमरान मुल्ला आए हैं, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, हालांकि एक प्रोटेक्शन लगाए हुए हैं डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। गेंद को वाए फील्ड किए। देखिए अब यहां से टीम कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स गोवा सर पिछड़ रही है। हम देखें तो जब 5.4 गेंदें हुई थी तो वो 76 रन उन्होंने बनाए थे। अब यहाँ एक हालांकि 4 विकेटें खोई थी, यहाँ पे 71 रन बने हैं, 3 विकेटें खोई है अभी भी, लेकिन जो रन रिक्वायर्ड रन रेट है वो 18 के आसपास का है। 14 गेंदों में 42, ये बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते। Well, what is going to matter is clean hitting. Out of 14 balls, they need to hit at least 5 sixes. 4s will not work now. If they hit 5 sixes, 6 every second, third ball, they may come close to the winning total. Let me now also tell you, they are chasing the highest total right now. 113 has not been chased by any team. So this is going to be
a double-edged sword for Team Goa. क्या बात है, विघ्नेश एम अपने कंधे का संपूर्ण इस्तेमाल करते हुए इस पिच का भरपूर फायदा लेते हुए शॉर्ट अप लेंथ गेंद की है और बल्लेबाज को शॉट हालांकि खेलना चाहते थे, गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी तक अगर हम देखें इस मैच में विघ्नेश एम ने अंतिम गेंद डालना शेष है अपने इस स्पेल का। 3 रन दिए हैं, 3 विकेटें निकाली है, माइंड ब्लोइंग 1.64। इस बार गेंद आसमान में है, क्या ये कैच आउट हो सकते हैं? और ये कैच, बड़ा विकेट विघ्नेश एम का मैजिक स्पेल, 3 रन देकर 4 सफलताएं और रॉयल चैलेंजर्स गोवा को अब बैकफुट पर डाल दिया इस ओवर में। Demolition man, Vignesh M. V for victory, V for Vignesh. 2 overs, 4 runs and 3 wickets, 71 for 4. I remember Sagar Bhandari on day 2, 2 overs, 1 maiden, 5 runs and 3 wickets. And now that record is being broken. 2 overs, no maidens, 3 runs and 4 wickets. The forfeit taken by Vignesh M. Entire Tamil Nadu is rejoicing the success of Vignesh M. And decision is pending with the third umpire. 12 balls 42 at the moment. A lovely face reading by the cameraman, capturing the emotions. Umpire Nasir Sheikh gives it a no ball. Twist in the tail. Sai Zore is laughing. There's a saying in cricket, when you get an opportunity, grab it with both the hands. 13 balls 42. Now if 6 comes off this ball, then the equation will be 12 balls 35. Let's see. What is he going to do with the free hit ball? Sai Zore. He is the king of falling sweet. साई सिजोरो को एक और लाइफलाइन मिली है। इंपॉर्टेंट गेंद मैच की, फ्री हिट बॉल थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए। हालांकि खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। यहां विघ्नेश एम का फाइनली यहां पर मैजिक स्पेल खत्म होता हुआ। 2 ओवर 4 रन और 3 सफलताएं। So that's the end of the over by Vignesh, very rightly summarized by Sujit Chan. Record run rate out 20.50. 12 balls and 41 runs. सर यहाँ पे अभी जोरे का भी जो एक लाइफलाइन मिली है, लेकिन 12 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता है। और अब हम देखें तो यहाँ पे ये जो मैच है अब 20.5 20.5 का रिक्वायर्ड रन रेट है अब इस ओवर, यानी ये जो इम्पोर्टेंट ओवर है ये मैच का। देखिए सुजीत जी, आपके साथ हिंदी में बात करना चाहूँगा। 7 बॉल हो गए, कोई चौका छक्का आया नहीं है। और इसका पूरा श्रेय जाता है विघ्नेश एम को, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है। अब यहाँ प्रसन्ना आए हैं जिन्होंने पहले ओवर में 22 रन खर्च किए थे, काफ़ी महंगे रहे थे, लेकिन अब 11 गेंदों में 40 रनों की ज़रूरत है। 21.82 का रिक्वायर्ड रन रेट। पिछली 8 गेंदों में कोई बाउंड्री आई नहीं है। और यही देखे सुप्रीम सुपर किंग्स तमिलनाडु ने 13 छक्के लगाए हैं और हम रॉयल चैलेंजर्स गोवा को देखे, उन्होंने अब तक 7 छक्के लगाए। ये जो डिफरेंस है यही मैच का मेन डिफरेंस है और उसका प्रमुख जो कारण रहे हैं वो विघ्नेश एम। अच्छी गेंदबाजी, प्रसन्ना लगातार वाइड लेंथ पर गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं और हद तक
उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की है। पिछले मैच में उन्होंने पूर्वांचल पैंथर्स के सामने बहुत ही एक अच्छा स्पेल डाला था, लेकिन यहाँ पहले ओवर में थोड़ा महंगे साबित हुए, लेकिन दूसरे ओवर में वापसी करते हुए 7 एक्स्ट्राज आए हैं, 5 बाई के हैं, 1 वाइड आई है, 1 नो बॉल आई है। पहला विकेट 32 पर गिरा, दूसरा 70 पे, तीसरा 70 पे, और अब So Sai Zone has retired out. A very unusual incident in cricket. He was playing well, but then got retired out, and in his place, the new batter who has arrived is Guru Prasad. 10 balls and 40 runs. Guru Prasad Bhiva Aroskar. A lot will depend. They need to hit 5 sixes. Come what may. If not 5, 4. Minimum 4 sixes required. अच्छी उछाल लेती हुई ये गेंद एक बार फिर गई है विकेट कीपर के दास्तानों में। हमने अब तक जो देखा है सुप्रीम सुपर किंग्स के सभी गेंदबाजों ने लगभग अपने हर ओवर में एक बाउंस करने का प्रयास किया है, और वो गेंद बिंदी रही है, डॉट रही है, और यहाँ एक एक रन 1 करोड़ के समान है। जो टीम पहुंचेगी फाइनल में, जो यहाँ विजेता बनेगी, उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में होगी। 1 करोड़ की वो प्राइज। अच्छी गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बैक ऑफ लेग डाली गई है गेंद। गुरु प्रसाद आए हैं, अब तक उन्होंने 2 गेंदों का सामना किया है और कोई भी रन अभी तक उन्होंने नहीं किए हैं। 8 गेंदें शेष हैं और 40 रनों की 40 महत्वपूर्ण रन्स बनाने की ज़रूरत है। क्या 6 या 7 छक्के देखने को मिल सकते हैं? इस बार बल्ले का एज लगी है, गई है। शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, हालांकि उन्होंने कैच करने का प्रयास किया भी नहीं, फिर भी 1 रन लेकर गुरु प्रसाद ने अपना छोर चेंज किया है। इम्पैक्ट प्लेयर आए थे इमरान मुल्ला, जो 2 गेंदों पे 2 रन बनाए, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे विघ्नेश एम, और उन्होंने 4 रन देकर 3 सफलताएं 2 ओवर में मैच को बिल्कुल पलट कर रख दिया उनके स्पेल ने। 7 गेंदें 39 रन। लोअर फुल टॉस गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, हालांकि वहां पर प्रोटेक्शन है, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स गोवा की उम्मीदों को झटका लगता हुआ, और सुप्रीम सुपर किंग्स तमिलनाडु, जो पिछले मुकाबले में बहुत क्लोज इनकाउंटर, नेल बीटिंग मैच में बहुत करीबी मार्जिन से मुकाबले को लॉस किया था पूर्वांचल पैंथर्स के सामने, इस मैच में अब उनके लिए सही साबित होता हुआ सबसे बड़ा स्कोर यहां पर खड़ा किया था। प्रताप सरनाइक फाउंडेशन। दुधिया रोशनी में जगमगाता हुआ यह स्टेडियम दादोजी कोंडदेव स्टेडियम। दादोजी कोंडदेव एक महापुरुष जो स्वराज के अधीन रहे, छत्रपति शिवाजी के संरक्षक रहे, और बचपन में काफ़ी उन्होंने शिक्षा दीक्षा से लेकर उनको कौशल रणनीति में काफ़ी चीज़ें सिखाई। आज हम इसी बीच अच्छी गेंदबाजी, जब से विघ्नेश एम ने गेंदबाजी करके गए हैं, 1 ओवर में 22 रन प्रसन्ना ने भी खर्च किए थे, लेकिन जब उनका फिगर्स हम देखें तो दूसरे ओवर में मात्र उन्होंने 3 रन दिए हैं। पिछली 15 गेंदों में एक भी बाउंड्रीज नहीं आई है, और जिसका श्रेय जाता है विघ्नेश को। 5 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता। ये देखिए हमारी बहुत सारे दर्शक देखने के लिए आई है, काफ़ी प्रसन्नचित मुद्रा में। इस बार हालांकि अटपटे ढंग से खेला है, खेलना कहीं चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले का निचला हिस्सा लेती हुई गई है डीप काउ कॉर्नर की तरफ। वहाँ पर एक खिलाड़ी मुस्तैद है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। इमरान मुल्ला जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, लेकिन उन्होंने अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। बालाजी एम भारत के एक तेज गेंदबाज हुआ करते थे, लक्ष्मीपति बालाजी, और उन्होंने जब पाकिस्तान के विरुद्ध मुल्तान, रावलपिंडी में जाके उन्होंने शोएब अख्तर को वो सिक्सेज लगाए, और काफ़ी अच्छे गेंदबाजी करते थे। उनका वो रिदम, वो पेस, वो बाउंस।
इस मैच में अब कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स गोवा की उम्मीदों को झटका लगा है, उम्मीदें धूमिल होती भी नजर आ रही है। ये देखिए हमारे फैंस जो शायद स्क्रीन में हैं, छोटे नन्हे मुझे बच्चे, और साथ में ये देखिए विक्ट्री की शाइन दिखाते हुए। इस बार लॉफ्टेड शॉट का प्रयास है, देरी हुई है, क्या ये भी जाएगी स्टैंड की तरफ? जी हाँ बिल्कुल, 6 रन यहां पर हासिल कर लिए बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत देर कर दी गुरु प्रसाद ने। मिडल और लेग स्टंप पर गेंद थी, बल्ले को घुमाया था, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर आसमानी रास्ते जा गिरी है सीधे टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन इंडिया, जहां पर बोर्ड लगा हुआ है। और ये आज इस बोर्ड के वजह से खेलो जी जान से और हमें कमेंट्री का मौका मिला है। और ये मेरा मुझे अपनी कमेंट्री के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, मेरे लिए मेरे आदर्श, मेरे गुरु जो बहुमुखी शख्स नहीं शख्सियत है, उनके साथ कमेंट्री करने का ये मुझे मौका मिला है। इसी बीच एक अच्छा स्ट्रोक सीधे बल्ले से खेले, जी हाँ मैं बात कर रहा था हरीश पंड्या सर की, इस चौके की मदद से स्कोर, हालांकि यारकर गेंद थी, खोद कर निकाला था, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इस मैच को जीत लिया है रॉयल चैलेंजर्स की टीम, परास्त हुई है सुप्रीम सुपर किंग से। तमिलनाडु की टीम को अंततः पिछले मुकाबले का जो वो कसक रह गई थी, उस कसक को यह जीत के साथ अब उनके लिए अगला मुकाबला डू और डाई का होने वाला है।